गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। There was once a wrestler called Vijay Singh, a tall man with massive shoulders and muscular arms. He towered over others like a giant. Vijay Singh, people said, was a born wrestler and could beat all other wrestlers in the world. एक बार एक पहलवान था जिसे विजय सिंह कहा जाता था। भारी कंधों और मांसपेशियों वाले भुजाओं के साथ एक लंबा आदमी, वह एक विशाल काय की तरह दूसरों के ऊपर चढ़ जाता था। लोग कहते थे विजय सिंह एक जन्मजात पहलवान है और दुनिया के अन्य सभी पहलवानों को हरा सकता है। This पहलवान had but one shortcoming which often landed him in awkward situations. He was fond of boasting. One day he was sitting in the marketplace surrounded by several young men. After drinking many glasses of milk, he suddenly proclaimed, "Why are people afraid of ghosts? I am not. I wish I met a stout ghost. I had teach him a lesson." इस पहलवान के पास एक कमी थी जो अक्सर उसे अजीब परिस्थितियों में डाल देती थी। उसे शेखी बघाड़ने का शौक था। एक दिन वह बाजार में युवकों के ग्रुप में बैठा हुआ था। कई गिलास दूध पीने के बाद उसे अचानक घोषणा की, "लोग भूतों से क्यों डरते हैं? मैं नहीं डरता हूँ। काश मैं एक तगड़े भूत से मिलूँ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा।" There were murmurs of applause as well as apprehension among the young men. "If you walk alone at night through the haunted desert," one of them said, "you are sure to meet ghosts. They roam there freely. Strange shrieks and moans can be heard all over the place. Travelers have been looted and killed. Would you really want to go there?" Vijay Singh's mighty heart missed a beat or two. Why did he have to boast? "Yes, I have heard of the haunted desert," he said nonchalantly. "I think it's just a fairy tale." युवकों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट के साथ साथ हंगामा भी हुआ। यदि आप प्रेतवाधित रेगिस्तान यानी हॉन्टेड डेजर्ट के बीच से रात में अकेले चलते हैं, उनमें से एक ने कहा, "आप भूतों से मिलना सुनिश्चित करते हैं। वे वहाँ खुलेआम घूमते हैं। सभी जगह अजीब सी चीखें और कराहें सुनाई देती हैं। यात्रियों को लूटा जाता है और मार दिया जाता है। क्या आप वास्तव में वहाँ जाना चाहेंगे?" विजय सिंह के दिल की धड़कन एक या दो बार चुक गई। उसने घमंड क्यों कर लिया? हाँ, मैंने प्रेतवाधित यानी हॉरर रेगिस्तान के बारे में सुना है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक परी कथा है। प्रेतवाधित यानी डरावना, भयानक, भूतिया। "Oh no," said one of his admirers. "It's true. This place is 10 miles to the west on the road to Jaisalmer. The landmark is an ugly black rock that looks like the head of a camel. Beyond that, there is nothing but sand and wilderness and of course ghosts." ओ नहीं, उनकी एक प्रशंसक ने कहा, "यह सच है। यह स्थान जैसलमेर की सड़क पर पश्चिम से 10 मील दूर है। इसकी पहचान एक बदसूरत काली चट्टान है जो ऊँट के सिर की तरह दिखती है। इसके परे रेत और जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से भूत वहाँ है।" Almost the entire village turned up that evening to bid farewell to Vijay Singh, who was ready to set out west. Just then an old man came forward and thrust a small packet into his hand, and Vijay Singh started walking into the red sunset of the desert. As he walked, the night deepened. The moon was bright and the stars shone clearly in the Rajasthan sky. Still a few miles short of his destination, Vijay Singh remembered the old woman's packet. He opened it and found nothing but a lump of salt and an egg. The old woman was well known for her eccentricities. लगभग पूरे गांव ने उस शाम को विजय सिंह को विदाई दी, जो पश्चिम की ओर निकलने के लिए तैयार था। तभी एक बूढ़ी औरत सामने आई और एक छोटे पैकेट को उसके हाथों में दे दिया। विजय सिंह रेगिस्तान की लाल सूर्यास्त में चलने लगा। जैसे जैसे वह चलता गया, रात गहरी होती गई। चंद्रमा चमकीला था और राजस्थान के आकाश में तारे स्पष्ट रूप से चमकते थे। अभी भी अपने गंतव्य से कुछ मील की दूरी पर विजय सिंह को बूढ़ी महिला का पैकेट याद आया।
उन्होंने इसे खोला और नमक और एक अंडे के अलावा कुछ नहीं मिला। बूढ़ी औरत अपने सनकीपन के लिए मशहूर थी। As Vijay Singh stepped into the haunted desert, he heard a voice. Vijay Singh, you will get lost in the desert. Come this way, I am your friend Natwar. At once Vijay Singh realized it was not his friend but a ghost. Trying to sound brave, he called back, where are you, my dear Natwar? It's so dark and I cannot see you. Come here and show me the way. Like all good wrestlers, Vijay Singh wanted to size up his enemy. जैसे ही विजय सिंह ने भूतिया रेगिस्तान में कदम रखा, उन्होंने एक आवाज़ सुनी, विजय सिंह, तुम रेगिस्तान में खो जाओगे, इस तरफ से आओ, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। एक बार विजय सिंह को एहसास हुआ कि यह उसका दोस्त नहीं बल्कि भूत है। बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए विजय बोला, मेरे प्यारे नटवर, कहाँ हो? यह अंधेरा है और मैं तुम्हें नहीं देख सकता। यहाँ आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। सभी अच्छे पहलवानों की तरह विजय सिंह अपने दुश्मन की अच्छी तरह से जांचना था। मतलब विजय सिंह जो था वो अपने दुश्मन को बहुत अच्छी तरीके से जांचना चाहता था। Soon the ghost appeared at his side. Vijay Singh peered into his face and declared, "You are just a plain lying ghost. Anyway, now I don't have to walk all night. I was longing to meet you, not used to insult." The ghost was taken aback. People generally started back in horror when they met him. They often fainted, but there was this unfeeling creature claiming he wanted to meet her ghost. I didn't make sense. Really, I don't know why you long to meet me, the ghost said. जल्द ही भूत उसकी तरफ दिखाई दिया। विजय सिंह ने उसके चेहरे पर झांककर घोषणा की, तुम सिर्फ एक सादे झूठ बोलने वाले भूत हो। वैसे भी अब मुझे पूरी रात नहीं चलना है। मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा था। भूत चौंक गया। आज तक किसी ने उसका ऐसा अपमान नहीं किया था। जब लोग उनसे मिलते थे तो लोग आमतौर पर भयभीत हो जाते थे और अक्सर बेहोश हो जाते थे, लेकिन यहाँ एक प्राणी ऐसा था जो कुछ एहसास नहीं कर रहा था और दावा कर रहा था कि वह एक भूत से मिलना चाहता है। यह समझ में नहीं आया। वास्तव में मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों तरस रहे हो, भूत ने ऐसा कहा। That proves, said Vijay Singh in a bold voice, that you are a stupid ghost. The least a ghost can do is to read a man's thought. However, a worthless ghost like you is better than no ghost. The fact is, I am tired of wrestling with man. I want to fight a ghost. The ghost was speechless. Marshalling his ghostly wits, he made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eye. Frankly, he said, you don't appear all that strong to me. Appearances can be deceptive, Vijay Singh said. Take your own case. You claim to be Natwar, who actually you are a rascal of a ghost. If you doubt my strength, let me give you a demonstration of it. यह साबित होता है, विजय सिंह ने एक ऊब भरे स्वर में कहा, आप एक बेवकूफ़ भूत है। सबसे कमज़ोर भूत भी एक आदमी के विचारों को पढ़ सकता है। हालांकि तुम्हारे जैसा बेकार भूत किसी भूत से बेहतर नहीं है। तथ्य यह है कि मैं पुरुषों के साथ कुश्ती से थक गया हूँ। मैं एक भूत से लड़ना चाहता हूँ। भूत अवाक था। अपनी भूतिया बुद्धि को चकमा देते हुए उसने विजय सिंह को आँख मारते हुए देखने का प्रयास किया। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, तुम उतने मजबूत नहीं लग रहे हो। विजय सिंह ने कहा, दिखने में छलावा हो सकता है, अपना मामला खुद लो। तुम नटवर होने का दावा करते हो, हालांकि वास्तव में तुम एक कमीने भूत हो। अगर मेरी ताकत पर शक है तो मैं आपको इसका प्रदर्शन दूंगा। Vijay Singh picked up a piece of rock from the sand. Take this, he offered it to the ghost and squeezed it hard. It is filled with fluid. See if I am wrong. While the ghost tried to squeeze the rock first with one hand, then with both, Vijay Singh stealthily took out the egg from his pocket. विजय सिंह ने रेत से चट्टान का एक टुकड़ा उठाया। इसी लो, उसने इसे भूत को पेश किया और इसे कड़ी मेहनत से दबाया। यह द्रव से भरी हुई है। देखे कि क्या मैं गलत हूँ। जहाँ भूत ने एक हाथ से पहले चट्टान को दबाने की कोशिश की, फिर दोनों के साथ विजय सिंह ने चुपके से अपनी जेब से अंडा निकाल लिया। Vijay Singh snatched the rock from the ghost and placed it between both hands and squeezed. At once the yellow yolk oozed from around his fingers and the crackling of the eggshell created the illusion of the stone being crushed. The ghost was so astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing of the
tail shell. Vijay Singh then picked up another piece of rock and gave it to the ghost. Without a word, the ghost took it, felt it, and peered at it. Vijay Singh put his hand into his pocket to take out the lump of salt. विजय सिंह ने भूत से चट्टान को छीन लिया और दोनों हाथों के बीच रख दिया और निचोड़ लिया। एक बार जब पीले रंग की जर्दी उसकी उंगलियों के आसपास से निकलकर अंडे की खोल से पत्थर कुचलने का भ्रम पैदा किया, भूत इतना हैरान था कि उसने विजय सिंह को रेत से हाथ साफ करने और अंडे की खोल को फेंकने का पता नहीं चला। विजय सिंह ने तब चट्टान का एक और टुकड़ा उठाया और उसे भूत को दे दिया। एक शब्द के बिना भूत ने उसे ले लिया, उसे महसूस किया और उस पर झपटा। नमक की गांठ को बाहर निकालने के लिए विजय सिंह ने अपनी जेब में हाथ डाला। "This is only a stone," protested the ghost, "and anyway it is too dark to see." "Never heard of a ghost you can't see in the dark," remarked Vijay Singh. "That stone which you hold in your hand contains salt. Crumble it and see." Again the ghost tried to crush the stone, but in vain. He handed over the stone to Vijay Singh. The ghost was now beginning to doubt his ghostly powers. "I can see that you are not being to be a worthy opponent. What is the use of wrestling with a weakling whom I can floor in a minute?" So saying, Vijay Singh casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness. He held out his hand and commanded the ghost to take the powered stone. यह केवल एक पत्थर है, भूत ने विरोध किया, और वैसे भी यह देखने के लिए बहुत अंधेरा है। कभी एक भूत के बारे में नहीं सुना जो अंधेरे में नहीं देख सकता है, विजय सिंह ने टिप्पणी की। वह पत्थर जो तुम अपने हाथ में रखते हो उसमें नमक होता है, इसे तोड़ें और देखें। फिर से भूत ने पत्थर को कुचलने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। उसने पत्थर विजय सिंह को सौंप दिया। भूत को अब उसकी भूत शक्तियों पर संदेह होने लगा था। "मैं देख सकता हूँ कि आप एक योग्य प्रतिद्वंदी नहीं हैं। मैं 1 मिनट में जिसको तोड़ सकता हूँ उसके साथ कुश्ती का क्या उपयोग है?" इतना कहते हुए विजय सिंह ने लापरवाही से नमक का ढीला तोड़ा और पत्थर को अंधेरे में गिरा दिया। उसने अपना हाथ बाहर रखा और भूत को चूर्ण पत्थर का स्वाद लेने की आज्ञा दी। Mesmerized with the Pehlevan's extraordinary strength, the ghost did as he was told. Alarm shot through him. This man could easily vanquish him in an wrestling bout in the dark, but perhaps he could be tricked in other ways. Assuming a servile manner, the ghost said, "Friend Vijay Singh, it is an honor to meet you, man like you. I admit to being defeated, but where will you go tonight? Rest in my house. You can leave tomorrow." पहलवान की असाधारण ताकत से प्रभावित होकर भूत ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। उसके दिमाग में अलार्म बजा। यह आदमी अंधेरे में कुश्ती के मुकाबले में आसानी से उसे हरा सकता था, लेकिन शायद उसे अन्य तरीक़ों से बरगलाया जा सकता था। एक सहज तरीके से यह मानते हुए भूत ने कहा, "दोस्त विजय सिंह, आप जैसे आदमी से मिलना एक सम्मान की बात है। मैं अपनी पराजय मानता हूँ, लेकिन आज रात तुम कहाँ जाओगे? मेरे घर में आराम करो, आप कल जा सकते हो." Now thoroughly elated, Vijay Singh replied, "I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner. I must display the trophy of my victory to my people." The ghost bowed in agreement, but silently vowed to kill Vijay Singh in the night. He led him to his house in the cave. पूरी तरह से प्रसन्न विजय सिंह ने जवाब दिया, "मैं आपके आतिथ्य से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे साथ मेरे कैदी के रूप में जाएंगे। मुझे अपनी जीत की ट्रॉफी अपने लोगों को दिखानी है।" भूत ने समझौता कर लिया, लेकिन रात में चुपचाप विजय सिंह को मारने की कसम खाई। वह उसे गुफा में अपने घर ले गया। The ghost fed him dry fruits and a lot of milk, and later led him to a luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters. भूत ने उसे सूखे मेवे और ढेर सारा दूध पिलाया और बाद में उसे सोने के लिए एक शानदार बिस्तर पर ले गया जिस पे तकिए और गद्दे लगे थे। But Vijay Singh lay awake listening to the snores of the ghost. In the middle of the night, he slipped off his bed. He placed a bolster in the center of the bed, throwing over it a coverlet to make it look exactly like a sleeping man. Having done this, he crouched watchfully in a dark corner. लेकिन विजय सिंह भूत के खर्राटे सुनकर जाग गया। आधी रात में वह अपने बिस्तर से सरक गया। उन्होंने बिस्तर के केंद्र में एक गद्दा रखा, इसके ऊपर एक चादर फेंक दिया ताकि यह सोते हुए आदमी की तरह दिखाई दे। ऐसा करने के बाद वह एक अंधेरे कोने में चौकस हो गया।
Sure enough, just before the break of dawn, the ghost approached the bed armed with a stout club. He brought the club down on what he thought was Vijay Singh's head. Not hearing even a groan, he smiled, pleased that he had killed his enemy. सुबह के होने से ठीक पहले भूत ने एक गद्दे के साथ बेड के पास आया। उन्होंने गद्दे को विजय सिंह का सर समझकर गद्दे पर प्रहार किया। एक आवाज़ भी नहीं सुनकर वह मुस्कुराया, खुश हुआ कि उसने अपने दुश्मन को मार डाला है। However, just to make doubly sure, he struck the bolster 6 times more. Satisfied with his work, he returned to his couch and his head settled down to sleep again. Meanwhile, Vijay Singh crept silently back into the bed. After a pause, he groaned as if in disgust, threw back his coverlet and sat up. हालांकि सिर्फ दोबारा सुनिश्चित करने के लिए उसने 6 बार गद्दे को मारा। अपने काम से संतुष्ट होकर वह अपने सोफे पर लौट आया और अपना सिर ढककर फिर से सोने के लिए चल पड़ा। इस बीच विजय सिंह चुपचाप बिस्तर पर वापस आ गया। थोड़े समय के अंतराल के बाद वह करा उठा, जैसे कि घृणा में हो। अपने चादर को वापस फेंक दिया और बैठ गया। Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning. For a moment, the ghost turned rigid with shock. "Friend Ghost, there are insects in your cave," said Vijay Singh in a complaining voice. "Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in years, and there comes this its wings. Of course, it has not beaten me, but it's most annoying." The ghost panicked. Those 7 blows would have reduced any other man to pulp. There is no safety near a formidable wrestler like this, he thought, and fled from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth. इस बीच विजय सिंह चुपचाप अपने बिस्तर पर आ गया। थोड़े समय के अंतराल के बाद वह करा उठा, जैसा कि घृणा में हो। अपनी चादर को वापस फेंक दिया और बैठ गया। शोर से परेशान होकर भूत ने अपनी शैया के नीचे से झाँककर देखा कि वह मजबूत आदमी अपने सिर के ऊपर से अपनी बाहों को खींच रहा है और जम्हाई ले रहा है। एक पल के लिए भूत सदमे से निश्चल हो गया। दोस्त भूत, आपकी गुफा में कीड़े हैं, एक शिकायत भरे स्वर में विजय सिंह ने कहा। यहाँ मैं वर्षों की सबसे प्यारी नींद का आनंद ले रहा था और मुझे परेशान करने के लिए किटा जाता है। मैंने विशिष्ट रूप से इसके पंखों के साथ फड़फड़ों को गिना। बेशक इसने मुझे नहीं काटा है, लेकिन यह सबसे कष्टप्रद है। भूत घबरा गया। उन 7 धमाकों ने किसी दूसरे आदमी को लुगदी में बदल दिया होगा। इस तरह एक दुर्जय पहलवान के पास रहने में कोई सुरक्षा नहीं है, उसने सोचा, और गुफा से अपने सभी पाप से कमाए धन को छोड़कर भाग गया। It took several camels from the village to remove the property Village Singh had acquired. He returned much of it to the rightful owners. He went specially to the old woman, thanked her for her invaluable gift, and asked for her granddaughter's hand in marriage. Thenceforth, Vijay Singh was more careful about boasting. It is said that no traveler was ever troubled again in haunted desert. विजय सिंह ने जो संपत्ति अर्जित की थी उसे हटाने के लिए गांव से कई ऊँट ले गए। उसने इसे सही मालिकों को लौटा दिया। वह विशेष रूप से बूढ़ी औरत के पास गया, उसे अपने अमूल्य उपहार के लिए धन्यवाद दिया और शादी के लिए उसकी पोती का हाथ मांगा। इस घटना के बाद से विजय सिंह शेखी बगाड़ने से ज़्यादा सावधान थे। कहा जाता है कि हॉन्टेड रेगिस्तान में कोई भी यात्री फिर कभी परेशान नहीं हुआ। इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।